جا رہے ہیں. اب مرنے والے سے پوچھنا ارے تو پیدا ہوا تھا تو جب پیدا ہوا تھا تیرا باپ مسکرا رہا تھا, تیری ماں مسکرا رہی تھی, تیرے گھر والے مسکرا رہے تھے, تیرا اہل و عیال مسکرا رہا تھا, لیکن تو نے مسکراہٹ چھوڑ کر کے سب کی محبتوں کو توڑ کر کے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گا یار جب میں پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا, جب میں رو رہا تھا تو میرا باپ مسکرا رہا تھا, میں رو رہا تھا میری ماں مسکرا رہی تھی, جب میں رو رہا تھا میرا گھر والا مسکرا رہا تھا. لیکن آج بندے خدا جب جا رہا ہے چار کاندھوں کے سہارے جا رہا ہے, خوشبو لگا کر کے جا رہا ہے, عطر لگا کر کے جا رہا ہے, نیا کپڑا پہن کر کے جا رہا ہے, پوچھنا جب آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا, آج مسکراتے ہوئے جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اتنی عزتیں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے گا آج وہاں جا رہا ہوں, دنیا میں تھا تو مجھے پتا نہیں, اللہ نے کنگال بنایا تھا, اللہ نے غریب بنایا تھا, دنیا میں تھا تو میں مدینے کا دیدار نہ کر سکا, لیکن آج مسکراتے اس لیے جا رہا ہوں کہ قبر میں کسی کے باپ کا دیدار نہیں ہوگا, رسول پاک کا دیدار ہونے جا رہا ہے. جزاک اللہ. ہاں آج قبر میں اس لیے جا رہا ہوں. ہاں صاحب, چونکہ اس سے تو سب کوئی واقف ہے, سب کوئی جانتا ہے, تو یہاں بیٹھانے کا مقصد یہی ہے جانے والے مرحوم کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں, چونکہ اور اس کا مقصد بھی ہے اللہ اس محفل رسول کے صدقے میں جانے والے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اگر اللہ بخشش کا پروانہ سنا دیا ہے تو ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. چونکہ سبھی آپ تمامی حضرات جانتے ہیں آج سے 40 روز پہلے ہمارے درمیان وہ عظیم سخنور شاعر بے دھڑک حضرت مولانا ادریس انصاری صاحب قبلہ ہمارے روبرو موجود تھے, اور آج سے 40 روز پہلے سے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور سب کے ساتھ یہ ہونا ہے, سب کو دنیا چھوڑ کر کے ایک دن الوداع کہنا ہے, سب کو جانا ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. موت لفظ موت ایسی چیز ہے نا کہ موت سے کسی کی دولت نہیں بچا پائے گی. موت اگر کسی کے پاس زیادہ زمین ہے, زیادہ شہرتیں ہیں, تو شہرت بھی موت سے نہیں بچا پائے گی. اگر زیادہ آپ کے پاس مال و زر ہے تو مال و زر بھی موت سے نہیں بچا پائے گی. موت کی 3 کیٹیگری سرزمین ہندوستان میں ہیں. جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے, پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتا ہے, جب انتقال کیا فوراً لے جا کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو لے جاتے ہیں اور شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلا دیتے ہیں, جلانے کے بعد اس کے راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں یا پھر ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے خوبصورت, جو زندگی میں کبھی کبھی نہاتا تھا, کبھی کبھی عطر لگاتا تھا, کبھی کبھی خوشبو لگاتا تھا, لیکن مرنے کے بعد اسے اب اس کے بدن سے پرانے کپڑے کو اتارا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, اور تمام خوشبوؤں سے بھی معطر کیا جاتا ہے, سرما لگایا جاتا ہے اور نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہ ہماری کیٹیگری ہے, مذہب اسلام کی کیٹیگری ہے, اور مذہب اسلام خوبصورت مذہب ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد لوگ ہمیں غسل دیتے ہیں, ہمیں سرما لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, نئے کپڑا پہنا کر کے 4 کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی جانب لے جاتے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے, لیکن صاحب آپ اندازہ لگائیں جب کوئی شخص دنیا میں چند لمحے کی زندگی ہے, سب کو دنیا چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ رب کا اعلان ہے, جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا, یہ اس کا اعلان ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی ہے نا, چند لمحے کی زندگی ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو باپ ہے تو بیٹے سے پہلے باپ جا سکتا ہے. اللہ نے موت کو حقیقت رکھا ہے, سب کوئی جانتا ہے مرنا ہے, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب مرنا ہے. ہاں, چونکہ باپ سے پہلے بھی بیٹے کو مرتے آپ نے دیکھا ہوگا,
माँ से पहले आपने बेटियों के जनाजे को भी देखा होगा। हाँ, बाप से पहले आपने जवान बेटे को भी आपने जनाजे में शिरकत किया होगा। तो पता चला लफ्ज़ मौत, और अल्लाह ने जब मौत दी है ना, तो कोई गारंटी नहीं है बाप से पहले भी बेटा जा सकता है और बेटे से पहले बाप भी जा सकता है। तो ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अल गरज सबको जाना है, मरना है। तो साहिब मरना तो सबको है, एक वो जगह है जहां जिसे कब्र कहा जाता है, उस जगह में सबको लेटना है, आखिरी मंजिल में सबको जाना है। आज दुनिया को हम संवारते हैं, आज कौन नहीं चाहता है कि दुनिया हमारी बेहतर हो। कोई माल इकट्ठा करने की चक्कर में है। अगर औलादे जवान होते हैं ना, लोग ये सिखाते हैं, बेटे देखना तू फला काम करेगा तो तेरे पास ज्यादा आमदनी होगी। एक बाप के पास माल भी है, जमीन भी है, अच्छा मकान भी है, लेकिन जब मकान में कब तक रहता है, जब तक उसकी जिस्म और सांस की, जिस्म और रूह की ताल्लुक जब तक उसके बदन में रहती है, तब तक उस मकान में रहता है। लेकिन जैसे ही इंतकाल कर जाता है, तीसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, लोग बाकायदा आते हैं उसके करीब, उसको गुस्ल देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसके पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़ों का एहतमाम करते हैं, खुशबू लगाते हैं, अतर लगाते हैं। अब आना जरा आलमे तसव्वुर में पूछना, एक जाने वाला शख्स जब तक उसकी जिस्म में सांस थी ना, दुनिया वाले मोहब्बत करते रहे, जब तक उसके बदन में सांस थी, जब तक जिस्म और रूह का ताल्लुकात थी ना, तब तक दुनिया वाले उसे मोहब्बत भरी बातें करते रहे। एक बाप अपने बेटे की इज्जत करता रहा, अगर बेटा है तो बाप की इज्जत करता रहा, लेकिन जैसे रूह निकल जाती है ना, तो अब उसके बदन को अल्लाह ने इस तरीके से साइलेंट कर देता है। अब उसके पास हाथ होने के बावजूद भी हाथ से काम नहीं कर सकता है, अब पैर होने के बावजूद भी अपने पैर से चल नहीं सकता है। अपनी जिंदगी में तो मौज करता रहा, जब मर्जी किया गर्मियों के मौसम में 4-4 बाल्टी से गुस्ल करता रहा, नहाता रहा, ठंडी के मौसम में अपने कदम से बढ़ करके ठंडियों को दूर करता रहा। लेकिन चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो, जब सांस बदन से निकल जाती है, अब अपने हाथ से हरकत नहीं कर सकता है, पैर से चल नहीं सकता है, जुबान भी है लेकिन उस जुबान से बातें नहीं कर सकता है, अब तो दूसरे का मोहताज हो गया। लेकिन साहिब पूछना, आप कभी कब्र में, कब्रिस्तान में जाकर के जायजा ले ले, आपको नजर आएगी यार ये जमींदार था, ये बहुत बड़ा जमींदार था जिसके कब्र का निशान मिट चुका है। ये दुनिया में था ना, बहुत बड़ा नामवर था, जिसने आज आते आते कब्रिस्तान में इसके कब्र के निशान को खत्म कर दिया गया है। आप जायजा लेंगे ना, आप कहेंगे यार ये दुनिया में प्रधान था, आज कब्र में क्या आया, आज उसके कब्र पे जानवर भी मौजूद नहीं आ रहे हैं। साहिब इंसान तो दूर की बात है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, जिस्म से रूह खत्म हो जाती है, दुनिया वाले सोचते हैं कौन नहलाएगा इसे, कौन इसका कपड़ा उतारेगा, सब कपड़ा छूने से आपका डरने लग जाएंगे, सब नफरत करने लग जाएंगे, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। जो तुझे सलाम करता था, तेरे साथ खाता था, तेरे साथ चलता था, तेरे साथ बैठता था, जब रूह तुम्हारे तन से जुदा हो जाएगी, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तुझे छूने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, अरे साहिब, अरे जिंदगी में था तो इससे मुसाफा करता रहा, जिंदगी में साथ इसके साथ खाता रहा, इसके साथ बैठता रहा, इससे मोहब्बत करता रहा, क्या रूह निकल गई इसके जिस्म से? आज तू छूने से डर रहा है, आज इसके कपड़े को टच करने से डर रहा है, आज इसे गुस्ल कराने से डर रहा है। साहिब दुनिया वाले हैं, कोई बुजुर्ग होगा उसे गुस्ल करा देंगे, उसे नहला देंगे, नहला करके ले करके जब घर से तैयार करा दिया जाएगा, अच्छा लिबास पहना दिया जाएगा, सुरमा लगा दिया जाएगा, खुशबू लगा दी जाएगी, उसे उठाया जाएगा। आपके घर वाले, अगर बाप का जनाजा होगा बेटा तड़पता रह जाएगा, अगर बाप का जनाजा होगा बेटियां रोती रह जाएगी, अगर शौहर का जनाजा होगा बीबियां तड़पती रह जाएगी, अगर किसी मर्द का जनाजा होगा औरतें बिलखती रह जाएगी, आवाज देगी, बेटा कहेगा मेरे बाप को किधर ले जा रहे हो, दुनिया वाले कहेंगे बेटे तेरी मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक थी, अब ये वहां जा रहा है जहां इसकी जरूरत है। अगर बीवियां रोएंगी मेरे शौहर को कहां लेकर के जा रहे हो, आप आवाज दे करके कहेंगे बीवी तेरी मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक थी, अब कब्र की मंजिल में इसे लिटाने के लिए ले जा रहा है, किधर ले जा रहे हो? घर वाले पूछते रह जाएंगे
बेटियां रुकती रह जाएगी, मेरे बाप को ना ले जाया जाए, मेरा बाप ने मुझे पालने की खातिर खून पसीने को एक किया था, बेटियां तड़पती रह जाएंगी, लेकिन बाप को उठाकर शहर खामोशा की तरफ ले जाया जाएगा। अब मैं पूछना चाहूंगा साहिब, अरे इससे पहले तो दुनिया वाले तुझे नफरत करते थे, और तू जब जा रहा है लोग मोहब्बत से तुझे कपड़ा पहना रहे हैं, मोहब्बत से खुशबू लगा रहे हैं, मोहब्बत से अतर लगा रहे हैं, तुझे कांधों पर उठा करके कब्रिस्तान के जानिब ले जा रहे हैं। अब मरने वाले से पूछना, अरे तू पैदा हुआ था तो जब पैदा हुआ था तेरा बाप मुस्कुरा रहा था, तेरी माँ मुस्कुरा रही थी, तेरे घर वाले मुस्कुरा रहे थे, तेरा अहलो अयाल मुस्कुरा रहा था, लेकिन तूने मुस्कुराहट छोड़ करके सबकी मोहब्बतों को तोड़ करके किधर जा रहे हो? वो कहेगा यार जब मैं पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, जब मैं रो रहा था तो मेरा बाप मुस्कुरा रहा था, मैं रो रहा था मेरी माँ मुस्कुरा रही थी, जब मैं रो रहा था मेरा घर वाला मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज बंदे खुदा जब जा रहा है चार कांधों के सहारे जा रहा है, खुशबू लगा करके जा रहा है, अतर लगा करके जा रहा है, नया कपड़ा पहन करके जा रहा है, पूछना जब आया था तो रोते हुए आया था, आज मुस्कुराते हुए जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा इतनी इज्जतें कहां से आ गई? तो वो कहेगा आज वहां जा रहा हूं, दुनिया में था तो मुझे पता नहीं, अल्लाह ने कंगाल बनाया था, अल्लाह ने गरीब बनाया था, दुनिया में था तो मैं मदीने का दीदार न कर सका, लेकिन आज मुस्कुराते इसलिए जा रहा हूं कि खबर में किसी के बाप का दीदार नहीं होगा, रसूले पाक का दीदार होने जा रहा है। हाँ, आज कब्र में इसलिए जा रहा हूं। हाँ साहिब, आज कब्र में जा रहा हूँ यार, कम से कम दुनिया में तो मदीने का दीदार न कर सका, लेकिन कब्र में वो मुस्तफा जलवागर होगा। साहिब अपने आंखों को पाक कर लो जिन आंखों से मुस्तफा का दीदार करना है, साहिब अपने वजूद को पाक कर लो जिस वजूद का सामना मुस्तफा से कब्र में करना है। कौन सी चेहरा लेकर के जाओगे आप कब्र में, कौन सी आंखें लेकर के जाओगे जिन आंखों से मुस्तफा का दीदार करना है? फरमाया गया जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है उसे दफना करके लोग पलट जाते हैं, कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा, कब्र में तुझे लिटा करके दुनिया वाले पलट जाएंगे। जो कल तक तुझसे मोहब्बत करता रहा, कल तक तुझे साथी बताता रहा, कल तक तुझे दोस्त कहता रहा, आज कब्र में तुझे तन्हा छोड़ करके आ रहा है, छोड़ करके पलट रहा है। आप कब्र से आवाज देंगे यार दुनिया वाले तुझसे तो मैं बड़ा प्यार करता था, आज कब्र में अंधेरी कोठरी में छोड़ करके कहां जा रहे हो, आज मुझे तन्हा छोड़ करके कहां जा रहे हो? एक दोस्त कहेगा यार दोस्ती हमारी यहीं तक थी, कोई दोस्त आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, भाई आपको दफना करके पलट जाएगा, आप आवाज दे करके थक जाएंगे। मेरे बाप दुनिया में तो मेरे लिए मेहनत करता रहा, मेरे लिए खून पसीना एक करता रहा, आज कब्र पे थोड़ी देर ठहर जा, मेरा बाप, मेरा दिल घबरा रहा है, लेकिन आपका बाप भी नहीं सुनेगा। मैं कहना चाहूंगा सबकी मोहब्बतें अब दम तोड़ रही है, सबकी बेवफाई नजर आ रही है, एक बाप भी बेवफाई करके पलट जाएगा, एक दोस्त भी बेवफाई करके लौट आएगा, एक तेरा भाई भी बेवफाई करके कब्र लौट आएगा, जहां कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा। अब पूछना जाने वाले से कब्र में तन्हा सो रहा है, यहां सहारा कौन होगा? आवाज आती है अरे जिसका कोई नहीं होता है उसी का मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। अब रसूल का दीदार होने वाला है, कब्र में अब जा करके मुस्तफा का दीदार होगा साहिब। लेकिन आज हमने दुनिया में मौज कर रखा है, शराब के अड्डों को हम बात कर रहे हैं, जुआ के अड्डों पे हम बैठ रहे हैं, आज हमें मौत की फिक्र नहीं साहिब, आज जरा से भी हमें ख्याल नहीं दुनिया छोड़ करके जाना है। शायद मेरा 10 मिनट का वक्त खत्म भी हो गया, और उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, मेरी तकरीर तो हर रोज सुनते हैं। मैं रब की बारगाह में यही कहूंगा साहिब, जाने वाले एक मरहूम मौलवी इदरीस साहब चले गए हैं दुनिया से आज से 40 रोज पहले। जाने के बाद आप दुनिया में है ना, दुनिया में कोशिश करें अपने रब को नमाज पढ़ के, रोजा रख के, कुरान की तिलावत करके, कितने हैं 75% लोगों को कुरान नहीं आती है। अगर कब्र में मुस्तफा ने पूछ दिया बताना मेरे सीने पे जो उतारी गई है कुरान कै मर्तबा जिंदगी में पढ़ा है, कितने लोग हैं जवाब दे पाएंगे? जिस कुरान को जिंदगी में हम और आप सिर्फ कुरान को ये समझे हैं मरने का जरिया समझ लिए हैं, अगर कोई इंतकाल कर जाएगा तब हमारे घरों में कुरान खोलेंगे, अगर किसी को भूत पकड़ लेगा तब कुरान खोलेंगे। साहिब मैं कहना चाहूंगा जो कुरान मौत के वक्त हमें अजाब से बचा सकता है, जो कुरान हमारी मौत के वक्त जो तकलीफें होती है उस तकलीफ को कुरान कम कर सकता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कुरान को सिर्फ मौत का जरिया ना बनाया जाए, क्योंकि जब कोई शख्स का रूह निकलने लगता है दुनिया वाले बोलते हैं फला लड़के को बुलाया जाए, चंद लोग बैठ करके कुरान पढ़ दे, कोई शख्स होगा मुकद्दर वाला वो
बाप है जो अपने बेटे को कुरान पढ़ा करके चला गया है। कम से कम दुनिया वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बेटे का इधर इंतकाल होगा, दुनिया वाले बेटे होते हैं अपने दौलत से बाप को राजी करने की कोशिश करते हैं। आखिरी लम्हात में मौत और जिंदगी से बाप जब लड़ता है ना, बेटा अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो कुरान का कारी छोड़ करके जा रहा है, मौत और जिंदगी की आखिरी सांसों से लड़ रहा है, उस वक्त आपका बेटा अगर कुरान का कारी होगा, खड़े होकर कभी सूरह यासीन पढ़ेगा, कभी सूरह रहमान पढ़ेगा। खुदा की कसम, अगर दुनियादार बेटा अगर मौत के वक्त बाप को खड़ा होकर दौलतों का इस्तेमाल करे, कोई फल ला करके दे, कोई जूस ला करके दे, बाप को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मौत के वक्त में एक बेटा खड़ा होकर कुरान सुना देता है। खुदा की कसम, इधर बेटा कुरान पढ़ता है, कुरान बाद में खत्म होता है, अल्लाह की तरफ से रूह पहले कब्ज कर लिया जाता है। तो अपने बेटे को कुरान पढ़ा करके जाए, वरना साहब कितने लोग हम सिर्फ ये सोचते हैं बेटे को दुनियादार बनाया जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया जाए ताकि अच्छा माल देगा, अच्छा इनकम देगा, दुनिया में ऐशो आराम करेंगे। कितने दिन की है जिंदगी साहिब, वहां तो हमेशा रहना है ना, वहां मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां नहीं मरना है। हाँ, यहाँ आप चंद लम्हात की जिंदगी, कोई गारंटी नहीं यार। आज हम सांसें ले रहे हैं, आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल फिरोज रजवी के मौत का ऐलान सुन सकते हैं आप। ये तो रब जानता है ना, हम नहीं जानते। आज हमने दौलतों की बुनियाद पर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई परेशानी आए, मुसीबतें आए, दुनिया वालों से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि दुनिया का सिस्टम है साहिब, कितनी भी दुश्मनी होगी ना आपको भाई से, एक भाई में, तो हो सकता है मुसीबत के वक्त भाई काम आ जाएगा। कितनी भी नफरत होगी अगर बाप बेटे में, हो सकता है बाप का प्यार, अल्लाह ने बाप का सीना नरम बनाया है, बेटे के लिए उसको माया और मोह आ ही जाएगा, प्यार कर ही लेगा। मजबूरी में बेटे का बाप काम आ सकता है, लेकिन सोचना जिस वक्त बाप भी तेरा वहां मौजूद नहीं रहेगा, तेरा भाई भी मौजूद नहीं रहेगा, तेरे पड़ोसी भी मौजूद नहीं रहेंगे, तेरा दुनिया का कोई दोस्त भी वहां हाजिर नहीं रहेगा, वहां तीसरा कौन आएगा? फरमाया गया जब कोई बंदे खुदा कब्र में लेटा करके दुनिया वाले पलट जाते हैं ना, दो फरिश्तों की आमद होती है। आपने तारीखें नहीं सुना? दो फरिश्ते आते हैं, किस लिए आते हैं? तेरा इस्तकबाल करने के लिए नहीं आते हैं, तुझे खुशी देने के लिए नहीं आते हैं, तुझे तसल्ली देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि दो फरिश्तों की आमद होती है, सवाल और जवाब के लिए आया करते हैं। सवाल करते हैं फरिश्ते बैठा करके, तेरी जिस्म में रूह को लौटाई जाती है, कब्र में तुझे बैठा करके पूछा जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता मेरे बंदे तेरा रब कौन है? अगर आपका अमाल अच्छा होगा, आप फख्र से कहेंगे फरिश्तों रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल ठोक दिया जाएगा, बता तेरा दीन क्या है? माँ बता तेरा दीन क्या है? अगर अमाल अच्छा होगा, दूसरा सवाल का आप जवाब देंगे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल ठोका जाएगा, बता मा तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था? सुन, जिससे दोस्ती करता था, जिसके साथ खाता था, जिसके साथ पीता था, वो कब्र में नहीं जाएगा। तीसरा शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था? वहां आदमी कौन होगा? तेरा दोस्त नहीं होगा, तेरा रिश्तेदार नहीं होगा, तेरा भाई नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, अरे वहां तेरा चचा नहीं होगा, तेरा दादा नहीं होगा, दुनिया का रिश्तेदार नहीं होगा, वहां तो मदीने का ताजदार होगा, वहां मदीने का ताजदार होगा। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बता फरिश्तों इसके बारे में क्या कहता था? अगर आपका अमाल अच्छा होगा तो आप शान से कहेंगे अरे इसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। यार फरिश्तों इसके बारे में पूछते हो, मैं तो इतना जानता हूं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ साहिब, तो आप अमाल अच्छा करके जाए, कुरान अपने बेटे को पीछे कुरान का कारी छोड़ करके जाए। जहां आपका इंजीनियर प्रोफेसर बेटे को कब्र पे खड़े होकर 2 मिनट फातिहा पढ़ने का फुर्सत नहीं होगा ना, तो अगर आपका बेटा कुरान का कारी होगा और अगर आलिम दीन होगा तो सोने पे जब असर की नमाज में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ेंगे बाप को सवाब मिलता रहेगा। ऐशा खड़े होकर पढ़ेंगे ना, बाप को सवाब मिलता रहेगा। फजर खड़े होकर पढ़ेंगे, दुआ कर देंगे अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचा देना। फरिश्ते कहेंगे अरे बाप मुबारक हो, तूने दुनिया में अपने औलाद को कुरान का कारी छोड़ करके आया है, तेरा बेटा दुनिया में कुरान पढ़ रहा है। जब फरिश्ते कहेंगे जा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तुझे जन्नत दे दिया है, एक बाप कहेगा यार मैं तो गुनाह का गठरी लेकर आया था, मैं तो खताकार था, मैं पापी था, आखिर किस बुनियाद पे बख्शा जा रहा है? फरिश्ते कहेंगे यार मुबारक हो, तू दुनिया में गद्दार छोड़ करके नहीं आया है, मुस्तफा का वफादार छोड़ करके आया है। तेरा बेटा कुरान दुनिया में पढ़ रहा है, अल्लाह बख्शिश का परवाना आखिरत में सुना रहा है।
تو آپ کوشش کریں قرآن کا قاری چھوڑ کر جائے. باتیں بہت ساری ہیں, علماء کرام کا فہرست بھی بہت زیادہ ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے, نیک بنائے, مسجد کے نمازی میدان کے غازی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.